Chapter 3rd of the IT Act, Electronic Governance. Section 4 to 10A. Section 4 to 10A cover under Chapter 3rd of the IT Act. Section 4, Legal Recognition of Electronic Record. क्या है भैया, कौन सा? Legal recognition of electronic record. Information or any other matter shall be in writing or in type, written or printed form, then notwithstanding anything contained in the such law, such requirement shall be deemed to have been satisfied if such information or matter is where any law provides that rendered or made available in the electronic form and accessible so as to usable for the subsequent reference. Means in any other timing enforced law where the information or any other matter is required in writing or in typewritten or in printed form, etc., then the electronic records is also shall deemed to be a written material, printed material, typewritten materials. If the any electronic record has been produced before the competent court or the any other authority, then it is considered that the requirement of the concerned law has been fulfilled. अध्याय 3 देखेंगे आप, इलेक्ट्रॉनिक नियमन से संबंधित प्रावधान इस अध्याय 3 में, और धारा 4 से लेके और 10 का तक, धारा 4 से लेके और 10 का तक के प्रावधान जो है वो कवर होंगे इस चैप्टर के अंदर। धारा 4 जो है इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की विधि मान्यता। टाइटल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, टाइटल से सवाल प्रीलिम्स में आ सकता है। जहाँ कोई विधि यह उपबंध करती है, जहाँ किसी लॉ में जो है विधि में यह उपबंध हो, क्या हो कि सूचना कोई है या अन्य कोई विषय जो लिखित में हो या टंकित हो या मुद्रित रूप में हो, तो वहाँ ऐसी विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी ऐसी अपेक्षा पूर्ण कर दी गई समझी जाएगी यदि सूचना और विषय किस रूप में, सूचना और विषय इलेक्ट्रॉनिक रूप में दिया जाता है या उपलब्ध करवाया जाता है या इस प्रकार पहुंच योग्य है जो वो किसी पश्चातवर्ती निर्देश के लिए जो है उपयोग लिए जाने योग्य। यदि ये खंड क और ख में से कोई एक कंडीशन कंप्लीट हो जाती है, इलेक्ट्रॉनिक रूप में कोई सूचना दे दी जाती है या उपलब्ध कराई जाती है, या इलेक्ट्रॉनिक रूप में कोई मैटर दे दिया जाता है या उपलब्ध करवाया जाता है, या एक्सेस है उसमें जो है वो पहुंच योग्य है, बाद में भी आप उसको ओपन करके और एक्सेस कर सकते हो, देख सकते हो, उसको यूज कर सकते हो। तो इन दोनों में से कोई एक कंडीशन कंप्लीट हो जाए, या तो उपलब्ध करवा दिया गया है या दे दिया गया है या एक्सेस अलाउ की गई है, तो दोनों में से कोई एक कंडीशन कंप्लीट होते हैं तो क्या माना जाएगा कि विधि की वो अपेक्षा पूरी होगी। जहाँ लिखित रूप में कोई विषय या सूचना देनी थी या टंकित या मुद्रित रूप में कोई सूचना या विषय वो देना था और इलेक्ट्रॉनिक रूप में दे दिया गया है, तो ये भी क्या माना जाएगा कि वो लिखित रूप में ही, क्या माना जाएगा कि वो लिखित रूप में ही वो विषय और सूचना, ऐसा माना जाएगा। इस सेक्शन के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को भी एक लिखित दस्तावेज या लिखित अभिलेख के रूप में क्या किया गया, रिकॉग्नाइज किया गया है, विधि मान्यता है वो दी गई है उसको इस धारा 4 के अंतर्गत। देन सेक्शन 5, लीगल रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स, वेयर एनी लॉ provides that information or any other matter shall be authenticated by affixing the signature or any document shall be signed or bear the signature of any person, then notwithstanding anything contained in such law, such requirement shall be deemed to have been satisfied if such information or matter is authenticated by the means of the electronic signature affixed in such manner as may be prescribed by the central government. Generally, the document to be signed etc. by a one person, either by his full signature etc. or by thumb impression. If instead of that full signature or the thumb impression, the any electronic record have been authenticated by the
affixing electronic signature, then the requirement of the law shall be deemed to be fulfilled as per the section 5 of the this act. Means that affixing the electronic signature shall be deemed to be a sign the concerned document or the matter etc., or the thumb impression has been affixed upon the concerned document. Explanation: for the purpose of this section, sign with its grammatical variations and cognate expression shall with reference to a person means affixing of his handwritten signature or any mark or any document on any document, and expression signature shall be construed accordingly. When we can say that this particular matter, information, document is signed by a one person, when he make his signature upon that information etc., or upon the document, or make the any other marks, means the thumb impression etc., upon the concerned document, then we can say that that document is signed. इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह की विधि मान्यता: जब ये 2000 में एक्ट आया था, उससे पहले इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर नाम की कोई चीज़ नहीं थी। उससे पहले हमारे क्या थे, या वो नॉर्मल सिग्नेचर थे या थंब इम्प्रेशन था। तो जब इस एक्ट में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को रिकॉग्नाइज किया गया, तो प्रोविज़न, एक्सप्रेस प्रोविज़न बनाया गया कि ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर भी लॉ में क्या है वो एक लॉफुल सिग्नेचर के रूप में कंसीडर होगा। जहाँ कहीं भी आपके सिग्नेचर की आवश्यकता थी, वहाँ आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी सिग्नेचर है वो करते हैं, कोई पासवर्ड एटसेट्रा लगा के भी, तो वो भी क्या माना जाएगा, वो वैलिड सिग्नेचर है वो कंसीडर किए जाएंगे। उसको भी लॉ ने एक्सप्रेसली रिकॉग्नाइज किया है सेक्शन 5 के अंदर। जहाँ किसी विधि में यह उपबंध किया गया हो, जहाँ किसी विधि में यह उपबंध किया गया हो कि कोई सूचना है या कोई अन्य विषय है, उस पर हस्ताक्षर करके अधिप्रमाणित किया जाए, या कोई दस्तावेज है जो हस्ताक्षरित किया जाए, या उस पर किसी व्यक्ति के हस्ताक्षर हो, वहाँ ऐसी विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी ऐसी अपेक्षा पूर्ण कर दी गई समझी जाएगी यदि ऐसी सूचना या विषय ऐसी रीति से जो केंद्र सरकार के द्वारा विहित की जाए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने विहित किए, उस रीति से यदि इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर लगाकर क्या कर दिया जाता है, अधिप्रमाणित कर दिया गया है। किसको? किसी विषय को या किसी दस्तावेज को, किसी विषय को जो है, या किसी सूचना को या किसी दस्तावेज को, किसी सूचना, किसी विषय या किसी दस्तावेज को जो है इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर लगाकर क्या किया गया है, अधिप्रमाणित है वो किया गया है। और ऑब्वियसली जो है इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर लगा के अधिप्रमाणित किसको किया जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कोई इंफॉर्मेशन है या इलेक्ट्रॉनिक कोई रिकॉर्ड है, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख है, उसको है वो किया जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को जो है इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर लगा के अधिप्रमाणित कर दिया जाएगा, तो वो भी क्या है, वो भी लॉफुल सिग्नेचर की श्रेणी में आएगा। उसको भी ये सेक्शन 5 रिकॉग्नाइज करता है, विधि मान्यता है वो देता है कि ये लॉफुल है वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है वो लगाना, है वो सिग्नेचर के स्थान पर या थंब इम्प्रेशन आदि के है वो स्थान पर। स्पष्टीकरण देखेंगे आप। इस धारा के प्रयोजन के लिए उसके व्याकरणिक रूप भेदों और सजातीय पदों के साथ हस्ताक्षरित से किसी व्यक्ति के संदर्भ में अभिप्रेत है कि किसी दस्तावेज पर अपने हस्तलिखित हस्ताक्षर करना या कोई चिन्ह लगाना, और हस्ताक्षर का पद का भी तद अनुसार अर्थ है वो लगाया जाएगा। हम कब ये कहेंगे है वो किसी दस्तावेज विषय आदि के बारे में कि वो किसी व्यक्ति के द्वारा हस्ताक्षरित है, वो हम तब कहेंगे जब उसके सिग्नेचर हो, उसके ऊपर हस्ताक्षर हो, या कोई निशान लगाया हो, थंब इम्प्रेशन आदि, जो अंगूठा निशान आदि लगाया, इन दोनों में से कोई एक है तो हम ये कहेंगे कि वो क्या है, वो साइन है, वो हस्ताक्षरित है। और हस्ताक्षर का मतलब जो है कंसर्न व्यक्ति के द्वारा ऐसा साइन करना या ऐसा थंब इम्प्रेशन करना क्या कहलाएगा, ये जो है वो सिग्नेचर है वो कहलाएगा, हस्ताक्षर है वो कहलाएगा। सेक्शन 6, यूज ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इन गवर्नमेंट एंड इट्स एजेंसीज। यूज ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर in government and its agency, where any law provides for the filing of the any form, application or any other document with any office, authority, body, agency owned or controlled by the appropriate government in the particular manner। आपने भी ये 2000 में एक्ट नहीं आया था, उससे पहले कोई भी कंपटीशन का फॉर्म होता था तो हार्ड कॉपी आपको जो है वो प्रिंट आउट ले जाके आरपीएससी में, यूपीएससी में या अदर कोई एजेंसी उसमें जमा करनी होती थी। बट जब से ये आईटी एक्ट आया
तो उसमें आपने क्या कर दिए, ऑनलाइन फॉर्म भरने स्टार्ट कर दिए। ऑनलाइन फॉर्म, ऑनलाइन सबमिशन हो रहा है आपका, सिग्नेचर वगैरह भी जो है वो आपका जो थंब इम्प्रेशन आदि के माध्यम से बायोमेट्रिक्स जो है वो सिग्नेचर वगैरह है वो करने हैं, वो स्टार्ट करवा दिए। आपके वो फ़ोटोज़ वगैरह भी जो है वो उसमें ऑनलाइन जो है वो उसमें लगाने स्टार्ट कर दिए। ये सब है वो क्या है, इस सेक्शन 6 का प्रभाव है। द इशू और ग्रांट ऑफ द एनी लाइसेंस, परमिट, सैंक्शन, अप्रूवल बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड इन अ पर्टिकुलर मैनर, द रिसिप्ट, द पेमेंट ऑफ मनी इन अ पर्टिकुलर मैनर, then notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, such requirement shall be deemed to have been satisfied if such filing, issue, grant, receipt or payment, as the case may be, is effected by the means of the such electronic forms may be prescribed by the appropriate governments. इशू और ग्रांट ऑफ द एनी लाइसेंस, लाइसेंस की जगह ई लाइसेंस आ गए, परमिट की जगह ई परमिट आ गए, सैंक्शन की जगह ई सैंक्शन आ गई, अप्रूवल की जगह ई अप्रूवल है वो आ गया। तो ये सब जो है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट के अंदर जो है वो इसको रिकॉग्नाइज कर दिया गया। एंड रिसिप्ट और पेमेंट ऑफ मनी इन पर्टिकुलर मैनर, टैली और अदरवाइज जो है बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक मीन्स है जिसके माध्यम से आप रिसिप्ट भी जनरेट कर सकते हैं, जो भी है वो मनी आप है वो रिसीव कर रहे हैं। द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में for the purpose of the subsection first by rules prescribe these things which given in clause A and B of the subsection 2, the manner and format in which the such electronic records shall be filed, created or issued, and also the manner or method of the payment of any fee or charges of the filing, creation or issue any electronic record under clause A. Both these things which fall under the clause A or B may be prescribed by the making rule by central government under subsection 2 of the section 6. धारा 6 देखेंगे आप, सरकार और उसके अभिकरणों में, सरकार और उसके अभिकरणों में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख और इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह का प्रयोग, सरकार और उसके अभिकरणों में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख और इलेक्ट्रॉनिक चिन्हों का प्रयोग। सरकार और सरकार की जो एजेंसीज है, बहुत सारे सरकार के डिपार्टमेंट्स और भी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, यूपीएससी, आरपीएससी, इलेक्शन कमीशन और बहुत सारी बॉडीज़ ऑफ फाइनेंस कमीशन एटसेट्रा कॉन्स्टिट्यूशन में, और स्टेट्यूटरी बॉडीज़ भी जो है जो गवर्नमेंट की एजेंसी के रूप में कार्य करती, तो उन सभी जगह जो है इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, पेपर की जगह जो है कागज़ डॉक्यूमेंट की जगह इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो है और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर का जो है वो प्रयोग किया जाएगा। इस तरीके की बात इस सेक्शन 6 में दे रखी है। जहाँ किसी विधि में समुचित सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी कार्यालय या प्राधिकरण, निकाय या अभिकरण में कोई प्रारूप, कोई आवेदन या कोई अन्य दस्तावेज किसी विशिष्ट रीति से फाइल करने का या किसी अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र, मंजूरी, अनुमोदन व चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो विशिष्ट रीति से जारी या मंजूर करने का, या किसी विशिष्ट रीति से धन की प्राप्ति या संदाय का उपबंध हो, वहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी ऐसी अपेक्षा पूर्ण कर दी गई समझी जाएगी यदि ऐसा फाइल किया जाना मंजूरी, प्राप्ति, संदाय ऐसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से जो समुचित सरकार द्वारा विहित किया जाए जो है वो किया जाता है। ये जो एबीसी में से कोई भी जो बात है वो यदि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक रूप में जो है वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट द्वारा प्रेस्क्राइब जो मैनर है उस रीति से यदि ये फॉर्म एटसेट्रा फाइल कर दिया जाता है और लाइसेंस एटसेट्रा ग्रांट कर दिया जाता है और मनी एटसेट्रा रिसीव की गई है या उसका कोई पेमेंट एटसेट्रा हुआ है, तो वो क्या माना जाएगा, वो लॉफुल पेमेंट माना जाएगा, वो लॉफुल लाइसेंस है वो माना जाएगा, वो लॉफुल सैंक्शन अप्रूवल फॉर्म है वो कंसीडर किया जाएगा सबसेक्शन फर्स्ट के अनुसार। सबसेक्शन सेकंड देखेंगे आप, उपधारा 1 के प्रयोजन के लिए समुचित सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, ये वर्ड क्या है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, एप्रोप्रिएट ही था ना उसमें भी, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट्स। कुछ केसेस में एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब स्टेट गवर्नमेंट से, यदि लिस्ट सेकंड में जो सब्जेक्ट दे रखे हैं उसके संदर्भ में, और लिस्ट थर्ड जो है 7 शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की उसमें भी कोई स्टेट लॉ है, स्टेट लेजिस्लेचर ने लॉ बनाया, तो वहाँ तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब स्टेट गवर्नमेंट है, और इससे अदर देन किसी मैटर में क्या है,
है वो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट से। यस, समुचित सरकार जो है वो नियम बना सकती है और उनमें प्रावधान किया जा सकता है इन दो बातों के बारे में। कौन सी बातों के बारे में? वह रीति जिसमें और वो रूप विधान जिसमें ऐसे इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख फाइल सृजित और जारी किए जाएंगे। किस रीति से जो है और किस रूप विधान से इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख है वो फाइल किए जाएंगे, सृजित किए जाएंगे, जारी किए जाएंगे, उस मैनर को जो है, उस रीति को समुचित सरकार नियम बनाकर विहित कर सकती है। और दूसरी बात जो है, खंड क के अधीन किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की फाइल सृजित और जारी किए जाने के लिए किसी फीस या प्रभारों के संदाय की रीति क्या होगी या पद्धति क्या होगी, तो ये भी कौन निर्धारित कर सकती है? समुचित सरकार नियम बनाकर है वो विहित कर सकती है इस खंड ख के अंदर। सेक्शन 6A, डिलीवरी ऑफ द सर्विसेज बाय सर्विस प्रोवाइडर। डिलीवरी ऑफ द सर्विसेज बाय सर्विस प्रोवाइडर, most probably this provision has been added by the 2008 amendment. एक्ट नंबर क्या है उसके, कब इन्फोर्स में आया, दैट इज डिफरेंट थिंग। इसका टाइटल क्या है? आईटी एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2008। क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट एक्ट 2008। 2008 का जो संशोधन है उसके माध्यम से 6A जो है वो ऐड हुआ है। डिलीवरी ऑफ सर्विसेज बाय सर्विस प्रोवाइडर। द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में फॉर द पर्पज ऑफ दिस चैप्टर एंड फॉर efficient delivery of the services to the public through electronic means authorize. Appropriate government may authorize by order any service provider to set up, maintain, upgrade the computerized facility and the platform, perform the such other services as it may specify by notification in the official gazette. Appropriate government has discretionary power under section 6A of the IT Act to authorize by order to the any service provider for what or to do what, to set up, maintain and upgrade the computerized facility and perform the such other services which may specify by the notification in official gazette. Explanation for the purpose of this section. What is the meaning of the service provider? Service provider so authorized includes any individual, private agency, private company, partnership firm, sole proprietor firm or any such other body or agency which has been granted permission by the appropriate government to offer the services through the electronic means in accordance with the policy governing the such service sector. The word service provider used in section 6A, what is the meaning of the service provider so authorized by the appropriate government by order, which may be an individual, may be a single person, may be a private agency, private company, partnership firm, sole proprietor firm or any other body or agency which has been granted permission by the appropriate government to offer the services through the electronic means. धारा 6 का देखेंगे आप, सेवा प्रदाता द्वारा सेवाओं का प्रदाय। ये जो है वो 2008 आईटी एक्ट का जो है 2008 का संशोधन है, उसके माध्यम से धारा 6 का जो है इंसर्ट हुई है, जोड़ी गई है इस एक्ट के अंदर। समुचित सरकार इस अध्याय के प्रयोजन के लिए जनता को सेवाओं के दक्ष परिधान के लिए अधिप्रमाणित आदेश द्वारा ऐसी सेवाओं के प्रदाताओं को इलेक्ट्रॉनिक साधन के माध्यम से कंप्यूटरीकृत सुविधाओं की स्थापना, उनका अनुरक्षण, उनका उन्नयन और ऐसे अन्य सेवाओं का अनुपालन करने के लिए क्या कर सकता है? समुचित सरकार प्राधिकृत कर सकती है, जो वो राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करें।
समुचित सरकार की पावर है कि वो क्या है, ऑथराइज, प्राधिकृत है, वो कर सकती है पब्लिक को जो है वो सर्विसेज की डिलीवरी के लिए, सेवाओं के परिधान के लिए है वो सर्विस प्रोवाइडर को, सेवा प्रदाता को जो है वो ऑथराइज किया जा सकता है। कैसे? आदेश के द्वारा, जो इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से कंप्यूटरीकृत जो सुविधाएं वो उपलब्ध करवा, उनकी स्थापना, उनका अनुरक्षण, उनका उन्नयन आदि जो है और अन्य सेवाओं का अनुपालन करने के लिए जो है वो समुचित सरकार के द्वारा या वो ऑथराइजेशन है वो दिया जा सकता है। क्या मतलब है इस प्रकार प्राधिकृत सेवा प्रदाता का? समुचित सरकार द्वारा प्राधिकृत सेवा प्रदाता का जो है वो अर्थ क्या है, क्या मतलब है? इस प्रकार प्राधिकृत सेवा प्रदाता के अंतर्गत कोई व्यष्टि, कोई व्यक्ति है वो हो सकता है, सिंगल पर्सन, कोई प्राइवेट अभिकरण हो सकता है, प्राइवेट कंपनी हो सकती है, भागीदारी फर्म हो सकती है, एकल स्वत्वधारी फर्म हो सकती है, कोई अन्य निकाय हो सकता है, या क्या हो सकता है, अधिकरण हो सकता है, ट्रिब्यूनल थोड़ा ही था वर्ड, अभिकरण हो सकता है। क्या हो सकता है? अन्य कोई जो है निकाय या अभिकरण जिससे ऐसे सेवा सेक्टर को शासित करने वाली नीति के अनुसरण में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सेवाएं प्रस्तापित करने के लिए समुचित सरकार द्वारा क्या दी गई है? अनुमति दी गई है, अनुज्ञा है वो दी गई। इस प्रकार प्राधिकृत सेवा प्रदाता के अंदर कोई व्यष्टि हो सकता है, प्राइवेट अभिकरण हो सकता है, प्राइवेट कंपनी हो सकती है, कोई भागीदारी फर्म हो सकती है, कोई एकल स्वत्वधारी फर्म हो सकती है और अन्य कोई निकाय और अभिकरण भी हो सकता है जिसको समुचित सरकार ने जो है वो इस तरीके की सेवाएं प्रदान करने के लिए क्या दी है? परमिशन दी है, अनुज्ञा है वो दी है। सबसेक्शन 2, द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में ऑल्सो ऑथराइज एनी सर्विस प्रोवाइडर authorized under subsection 1 to collect, retain and appropriate the such service charges as may be prescribed by the appropriate government for the purpose of the providing the such services and from the person availing the such services. Appropriate government may grant the permission etc. or may authorize the concerned service provider to collect, retain and appropriate charges for the services provided by the concerned service provider. उपधारा 2 में देखेंगे आप, समुचित सरकार ऐसी कोई निःशुल्क में या फ्री ऑफ कॉस्ट है वो सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की जाएगी, उनके लिए कोई चार्ज वगैरह जो है उनको कलेक्ट करने के लिए, संग्रहित करने के लिए, उनको रिटर्न करने आदि के लिए जो है ऑथराइज किया जा सकता है सेवा प्रदाता को। समुचित सरकार उपधारा 1 के अधीन किसी प्राधिकृत सेवा प्रदाता को ऐसे सेवा प्रभार, इस तरीके के जो है वो सर्विस चार्जेस जो है जिन्हें ऐसे सेवा को प्राप्त करने वाले व्यक्ति से ऐसी सेवा प्रदान करने के प्रयोजन के लिए समुचित सरकार द्वारा विहित किया है, उसको संग्रह करने के लिए भी, उसको प्रतिधारण करने के लिए भी और उसको विनियोजित करने के लिए भी वो समुचित सरकार क्या कर सकती है? प्राधिकृत कर सकती है। किसको? ऑथराइज सर्विस प्रोवाइडर को। फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं, उसके बदले जो कोई सर्विस अवेल कर रहा है कोई व्यक्ति है वो उस सर्विस प्रोवाइडर से, तो उसके बदले वो चार्जेस भी दें जो है, चाहे वो साइबर कैफे या अदरवाइज किसी प्रकार का सर्विस प्रोवाइडर है, तो उसके बदले जो है वो सेवा प्रभार जो है जो समुचित सरकार ने निर्धारित या विहित किया वो संग्रहित करने, उसको प्रतिधारित करे, उसको विनियोजित करने के लिए भी प्राधिकृत सेवा प्रदाता को है वो क्या कर सकती है? समुचित सरकार प्राधिकृत है वो कर सकती है। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द सबसेक्शन 2, द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट may authorize the service providers to collect, retain and appropriate service charges under this section, notwithstanding the fact that there is no express provision under the act, rule, regulation or notification under which the service is provided to collect, retain and appropriate e-service charges by the service providers. Though there is no express provision under the any other act, rule, regulation, notification etc. to providing the such services and to collect the service charges, even though there is no such type of the provision, the appropriate government has power to authorize the authorized service provider to collect, to retain or appropriate the service charges. It is a non-obstant clause, notwithstanding anything provided under the any act etc. उपधारा 3 देखेंगे, उपधारा 2 की उपबंधों के अधीन रहते हुए, उपबंधों के अधीन रहने का मतलब क्या है? जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने निर्धारित किया है उन सीमाओं के अधीन रहते हुए,
उपधारा 2 के उपबंधों के अधीन रहते हुए समुचित सरकार सेवा प्रदाताओं को इस तथ्य के होते हुए भी कि इस अधिनियम, नियम, विनियम या अधिसूचना के अधीन, एक्ट का मतलब आईटी एक्ट सही है, इस अधिनियम या नियम, विनियम या अधिसूचना के अधीन कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं है जिसके अधीन सेवा प्रदाता द्वारा सेवा प्रभारों का संग्रहण, विनियोजन करने के लिए सेवा उपलब्ध है वो कराई जाती है। इस धारा के अधीन ई सेवा प्रभारों का संग्रहण, प्रतिधारण और विनियमन करने के लिए सेवा प्रदाताओं को है वो क्या कर सकती है, समुचित सरकार प्राधिकृत कर सकती है। ऐसा कोई प्रोविजन जो है ई सर्विस चार्जेस के संदर्भ में, ऐसा कोई प्रोविजन न आईटी एक्ट में, न आईटी एक्ट के अंतर्गत बनाए गए नियम, विनियम आदि में, न कोई सेंट्रल गवर्नमेंट वगैरह या अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन में। उसके बावजूद भी जो है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो ई सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रही है उसके लिए चार्जेस लेने के लिए सर्विस प्रोवाइडर्स को क्या कर सकती है, ऑथराइज कर सकती है, प्राधिकृत कर सकती है, उपधारा 2 के अधीन रहते हुए। सबसेक्शन 4, द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शैल by notification in the official gazette, appropriate government shall by notification in the official gazette specify the scale of the service charges which may be charged and collected by the service providers under this section, provided that the appropriate government may specify the different scale of the services charges for the different types of the services. In subsection 4 of the section 6A, appropriate government shall by notification in official gazette specify the scale of the service charges which may be charged and collected by the service provider under section 6A of this act, and the appropriate government may fix the different scale of the service charges for the different services. उपधारा 4 देखेंगे आप, समुचित सरकार को मैंडेटरी पावर है वो दी गई है, कुछ स्केल वगैरह है वो निर्धारित करने की। समुचित सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उन सेवा प्रभारों का मापमान विनिर्दिष्ट करेगी जो इस धारा के अधीन सेवा प्रदाता द्वारा प्रभारित और संग्रहित किए जाएंगे। सेवा प्रदाता इस धारा 6 के अंदर, चाहे उपधारा 2 में या उपधारा 3 के अंदर, जिन सेवा प्रभारों को है वो संग्रहित करेंगे वो समुचित सरकार के द्वारा जो है वो मापमान है वो विनिर्दिष्ट किया जाएगा। कैसे? राजपत्र में अधिसूचना है वो जारी करके। और परंतु देखेंगे आप, समुचित सरकार सेवाओं के विभिन्न प्रकारों के लिए जो है वो सेवा प्रभारों के विभिन्न मापमान को विनिर्दिष्ट कर सकती है। डिफरेंट सर्विसेज के लिए डिफरेंट सर्विस चार्ज के स्केल्स जो है वो हो सकते हैं। विभिन्न है वो सेवाओं के लिए जो है विभिन्न या भिन्न जो है उनके लिए सेवा प्रभार के स्केल या मापमान है वो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा या समुचित सरकार द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। सेक्शन 7 of this act, retention of the electronic record, where any law provides that documents, records, information shall be retained for any specified period, then that requirement shall be deemed to have been satisfied if the such document, record or information are retained in the electronic form. Where there is provision under the any law, the document, record or information shall be retained for a certain period, for 5 years, 10 years, 50 years, etc. If the document is written in the electronic form, the electronic record or the information in the electronic form has been written by the concerned authority, agency or the any department, ministry, etc. of the government, the such requirement of the law shall be fulfilled as per the subsection 1st of the section 7. The information content therein remains accessible so as to be usable for the subsequent reference. The electronic record is written in the format in which it was originally generated, sent or received, or in a format which can be demonstrated or represent accurately the information originally generated, sent or received. The details which will facilitate the identification of the origin, destination, date and time of the dispatch or receipt of the such electronic record are available in the electronic record, provided that this clause does not apply to the any information which is automatically generated solely for the purpose of the enabling an electronic record to be
डिस्पेस्ड और रिसीट। सबसेक्शन 2, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू एनी लॉ that expressly provides for the retention of the document, record and information in the forms of electronic record. This provision shall not be applicable etc. where expressly provides that the document, record or information shall be written in the form of electronic record. Such provision shall not be affected by the provision of the section 7 or by this section of the IT Act. धारा 7 देखेंगे आप, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों का प्रतिधारण। डॉक्यूमेंट भी रिटर्न किए जाते हैं, क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो भी रिटर्न होता है, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स जो है उनका रिकॉर्ड है वो भी रिटर्न होता है। दो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है तो उनका रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय नहीं होता है। बाकी कुछ पीरियड तक आप सिविल जनरल रूल, क्रिमिनल जनरल रूल वगैरह पढ़ेंगे तो एक रिकॉर्ड को रिटर्न करने का एक टाइम पीरियड होता है कि इतने टाइम तक रिटर्न किया जाएगा, उसके बाद डिस्ट्रॉय आदि कर दिया जाता है। तो वो रिटेंशन का कहीं पर भी लॉ में प्रोविजन है तो वहां यदि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी रिटर्न किया जाए तो वो क्या मान लिया जाएगा, उस लॉ की कंप्लाइंस हो गई है। जरूरी नहीं है कि वो डॉक्यूमेंट के रूप में, फाइल के रूप में, फिजिकल फाइल के रूप में ही रिटर्न किया जाए। यदि उसको जो है वो पीडीएफ एटसेट्रा के रूप में या अन्यथा भी रिटर्न किया जाए, वो रखा जाए तो वो क्या है, वो माना जाएगा, वो है वो रिटेंशन है, वो कंसिडर किया जाएगा। जहां किसी विधि में यह उपबंध है कि दस्तावेज, अभिलेख या सूचना किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए प्रतिधारित की जाए, वहां ऐसी अपेक्षा पूर्ण कर दी गई समझी जाएगी यदि ऐसा दस्तावेज, अभिलेख या सूचना इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रतिधारित है वो की जाती है। यदि उसमें अंतर्विष्ट सूचना इस प्रकार पहुंच योग्य बनी रहती है कि पश्चातवर्ती निर्देश के लिए जो है वो उपयोग में ली जा सकती है। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख उसी रूप विधान में जिसमें मूलतः उत्पादित, प्रेषित, प्राप्त किया गया था, या उस रूप विधान में जिसमें मूलतः उत्पादित, प्रेषित और प्राप्त की गई सूचना ठीक ठीक निरूपित करने के लिए निर्देशित की जा सकती थी, प्रतिधारित है, वो किया जाता है। वो ब्यौरे जो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के उद्भव, गंतव्य, प्रेषण और प्राप्ति की तारीख और समय के अभिज्ञान को सुकर बनाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में जो है वो उपलब्ध है। ये तीनों कंडीशन भी जो है वो यदि कंप्लीट होती है तो वो लॉफुल रिटेंशन है, वो कंसिडर होगा। यह खंड, ये जो है क्लॉज सी, ये खंड जो है वो किसी ऐसी सूचना को लागू नहीं होता है जो किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को केवल प्रेषित या प्राप्त करने में समर्थ बनाने के प्रयोजन के लिए जो है वो स्वतः उत्पादित है, वो की जाती है। उसमें कोई टाइम और प्लेस जो है वो होना है, वो जरूरी नहीं है। इस तरह की कोई भी बात किसी ऐसी विधि को लागू नहीं होगी जिसमें दस्तावेज, अभिलेख या सूचना इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रतिधारण के लिए अभिव्यक्त रूप से उपबंध है। जहां किसी विधि के अंदर अभिव्यक्त रूप से प्रावधान किया गया है कि कोई दस्तावेज, अभिलेख या सूचना इलेक्ट्रॉनिक रूप में ही रिटर्न की जाए तो उस प्रोविजन को जो है वो ये सेक्शन 6 जो है वो लागू नहीं होगा। उसमें फिजिकल फाइल को रिटर्न करने की आवश्यकता नहीं, वो है वो मैंडेटरी रूप से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही रिटर्न है वो किया जाएगा। सेक्शन 7A, audit of documents etc. maintained in electronic form. This provision most probably added by the 2000 audit of the document etc. maintained in the electronic form, wherein any law for the time being in force there is a provision for the audit of the documents, record or information. The provision shall also be applicable for audit of the document, records or of information process and maintained in the electronic form. Means the audit etc. of the document, record or the information which is processed and maintained in the electronic form is considered a lawful audit. The valid audit of the concerned document, record etc. E-audit is the valid audit. इलेक्ट्रॉनिक रूप में किए गए दस्तावेज इत्यादि की संपरीक्षा, जहां तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में दस्तावेज, अभिलेख और सूचना की संपरीक्षा का उपबंध है,
किसी विधि में ऐसा प्रावधान है कि दस्तावेजों का, अभिलेखों का या सूचना का या लेखा जो है, अकाउंट्स आदि जो है, उनका ऑडिट किया जाने का प्रावधान हो, संपरीक्षा का प्रावधान हो, वहां वह उपबंध इलेक्ट्रॉनिक रूप में संसाधित और रखे गए दस्तावेज, अभिलेख और सूचना की संपरीक्षा के संबंध में भी लागू होंगे। मीन्स एबो वो ऑडिट, ई ऑडिट भी हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी ऑडिट है, हो सकती है उन दस्तावेज की, उन एबो अभिलेख की, उस एबो विषय की। नेक्स्ट सेक्शन 8, पब्लिकेशन ऑफ द रूल रेगुलेशन एटसेट्रा इन द ई गजट, इलेक्ट्रॉनिक गजट, generally publication in the official gazette of the central government or the state government, and e-gazette is also maintained by the governments. If the publication of the rule regulation etc. in the e-gazette, it is considered a lawful publication, where any law provides that any rule regulation, where any law provides that any rule, regulations, order, bylaw, notification or any other matter shall be published in the official gazette, shall be published in official gazette, then such requirement shall be deemed to have been satisfied if such rule, regulation, order, bylaws, notification or any other matter is published in the official gazette or in electronic gazette. Either published in the official gazette or in the e-gazette, electronic gazette, the such requirement shall have been completed, shall deemed to have been satisfied or completed as per section 8 of the IT Act, provided that where any rule, regulation, order, bylaws, notification or any other matter is published in the official gazette or e-gazette, the date of publication shall be deemed to be the date of the gazette which was first published in any form. If publication in official gazette is first, then the date of that publication, and if the publication in the e-gazette is first, then the publication of that e-gazette. इलेक्ट्रॉनिक राजपत्र में जो है नियम, विनियम आदि का प्रकाशन, क्योंकि जब भी कोई लॉ बनता है, कोई इनेक्टमेंट है, रूल्स है, रेगुलेशन है, तो उसे क्या होता है, गजट में नोटिफाई किया जाता है, राजपत्र में वो क्या किया जाता है, अधिसूचित किया जाता है। जैसे आपके ये नए लॉ बने अभी, बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए वगैरह, तो उनका गजट नोटिफिकेशन हुआ, राजपत्र में अधिसूचित है, वो किया गया। तो ये राजपत्र जो है, जो एक गवर्नमेंट का एक डॉक्यूमेंट है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, उसके अंदर पब्लिकेशन होता है। तो सिमिलरली ई गजट भी है वो इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में राजपत्र भी जो है वो सरकार का, उसके अंदर भी पब्लिकेशन होता है। तो वो भी क्या है, वैलिड है, वो पब्लिकेशन माना जाएगा, वो भी लॉफुल पब्लिकेशन माना जाएगा। जहां किसी विधि में यह उपबंध है, जहां किसी विधि में यह उपबंध है कि कोई नियम, विनियम, आदेश, उपविधि, अधिसूचना या कोई अन्य विषय राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा, राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा, ऐसा किसी विधि में क्या है, प्रावधान है, कानून में कोई प्रावधान है, वहां ऐसी अपेक्षा पूर्ण कर दी गई समझी जाएगी यदि ऐसा नियम, विनियम, आदेश, उपविधि, अधिसूचना या कोई अन्य विषय जो है वो किसमें, या तो राजपत्र में या इलेक्ट्रॉनिक राजपत्र में क्या कर दिया गया है, प्रकाशित कर दिया गया। गवर्नमेंट के पास जो है ऑप्शन है, वो चाहे तो ऑफिशियल गजट में पब्लिश कर सकते हैं, वो चाहे तो ई गजट में भी पब्लिश कर सकते हैं। परंतु जहां राजपत्र या इलेक्ट्रॉनिक राजपत्र में कोई नियम, विनियम, आदेश, उपविधि, अधिसूचना या कोई अन्य सामग्री को प्रकाशित किया जाता है, तो वहां वही प्रकाशन की तारीख उस राजपत्र की तारीख समझी जाएगी जिसको वह प्रथमतः किसी रूप में प्रकाशित हुआ था, या जिसमें वह प्रथमतः किसी रूप में प्रकाशित हुआ है। सेम रूल जो है ऑफिशियल गजट और ई गजट दोनों में नोटिफाई हुआ है, और कोई डेट का डिफरेंस है तो कहां से पब्लिकेशन की डेट है वो मानी जाएगी उनकी, जो समय की दृष्टि से फर्स्ट जो पब्लिश हुआ है वो डेट ऑफ पब्लिकेशन है, वो कंसीडर है, वो की जाएगी, डेट ऑफ गजट जो है वो मानी जाएगी। सेक्शन 9, सेक्शन 6, 7 and 8 not to confer the right to insist the document should be accepted in electronic form. Nothing contained in section 6, 7 and 8 shall confer a right upon the any person to insist that any ministry, department of the central government or state government or any authority or body established by or under the any law or controlled or funded
by the central government or state government should accept, issue, create, retain and preserve the any document in the form of the electronic record or effect any monetary transaction in the electronic form. It is the discretion of the government or the government's agency, authority, etc. either that transaction in the form of the e-record, etc. or the information, etc. and maybe in the normal payment or the normal documentation. धारा 6, 7 और 8 इस बात पर जोर देने का अधिकार प्रदान नहीं करती है कि दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक रूप में स्वीकार किया जाए। डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिक रूप में भी स्वीकार हो सकता है और जो नॉर्मल जो डॉक्यूमेंटेशन है उस रूप में भी स्वीकार हो सकता है। धारा 6, 7 और 8 में 6, 7 और 8 में अंतर्विष्ट किसी बात को, किसी व्यक्ति को इस बात पर जोर देने का अधिकार प्रदान नहीं करेगी कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार के किसी मंत्रालय, विभाग या किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित या वित्त पोषित कोई प्राधिकरण या निकाय को कोई दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के रूप में स्वीकार, जारी, सृजित, प्रतिधारित, संरक्षित करना चाहिए या इलेक्ट्रॉनिक रूप में कोई धन्य संव्यवहार करना चाहिए। या ऐसा इस तरीके का राइट कोई व्यक्ति को है वो नहीं है। वो कंसर्न गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, अथॉरिटी का विवेक है। वो चाहे तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी एक्सेप्ट कर सकते हैं और वो चाहे तो नॉर्मल जो फॉर्म है, जो डॉक्यूमेंटेशन है या अदर देन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है उसमें भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये कंपेल नहीं कर सकते गवर्नमेंट कि आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही ये लेना होगा या ये पेमेंट स्वीकार करना होगा। ये कोई पर्सन का राइट नहीं है। इट इज द डिस्क्रेशन ऑफ द गवर्नमेंट और गवर्नमेंट्स अथॉरिटी ईदर एडमिट्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म और एडमिट्स इन द एनी अदर रिटर्न फॉर्म। Section 10, power to make the rules by central government in respect of electronic signature prescribed. The central government may, for the purpose of this act, by rules, the type of electronic signature, the manner and format in which the electronic signature shall be affixed, the manner or procedure which facilitates identification of the person, which facilitates the identification of the person affixing the electronic signature, control processes and procedures to ensure the adequate integrity, security and confidentiality of the electronic record or payments, and any other matter which is necessary to give the legal effect to the electronic signature. In respect of these 5 matters which fall under the ABCDE, central government may by rules makes the provision under section 10 of the IT Act. धारा 10 देखेंगे आप, इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक से संबंधित नियम बनाने की किस सरकार की शक्ति? केंद्र सरकार की शक्ति। इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर या इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक जो है इनके बारे में नियम बनाने की शक्ति इस धारा 10 में सेंट्रल गवर्नमेंट को है वो दी गई है। केंद्र सरकार इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए नियमों द्वारा निम्नलिखित है वो विहित कर सकती है। क्या? निम्नलिखित विहित कर सकती है। इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक का प्रकार जो है वो विहित कर सकती है। वह रीति और रूप विधान जिसमें इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर लगाया जाएगा उसको जो है वो नियमों में विहित किया जा सकता है केंद्र सरकार द्वारा। वह रीति या प्रक्रिया जो इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर लगाने वाले व्यक्ति की पहचान को सुकर बनाती हो, उसकी आइडेंटिटी जो है उसको फैसिलिटेट करती हो, उस रीति और प्रक्रिया को भी है वो केंद्र सरकार द्वारा नियमों में विहित किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख या संदायों की यथाचित समग्रता, सुरक्षा और गोपनीयता इनको सुनिश्चित करने के लिए नियंत्रण पद्धति और प्रक्रियाएं जो है उनके बारे में केंद्र सरकार द्वारा नियम बनाया जा सकता है। और कोई अन्य विषय भी, कोई अन्य विषय जो इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर को विधिक प्रभाव देने के लिए क्या हो, आवश्यक हो, इन 5 में से किसी विषय के बारे में या सभी विषयों के बारे में केंद्र सरकार जो है इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के बारे में क्या कर सकती है? नियम बनाकर प्रावधान है वो कर सकती है। सेक्शन 10A, the last section of this chapter 3rd,
validity of the contract formed through electronic means e contract is a valid contract, lawful contract as per section 10A of IT Act, wherein a contract formation, the communication of proposal, acceptance of proposal, the revocation of proposals, the acceptance as the case may be are expressed in electronic form by email etc. The proposal, communication of proposal, communication of acceptance or revocation of proposal, revocation of the acceptance etc. may be made by the party in electronic form, expressed in electronic form or by means of any electronic record. Such contract shall not be deemed to be invalid, unenforceable solely on the ground that the such electronic form or means was used for that purpose. Even the such contract is formed or that contract is concluded by the electronic means, by email etc. the proposal is made or acceptance has been communicated etc. the such contract is considered, such e-contract is considered a lawful contract or valid contract as per the section 10A, read with the provision of the Indian Contract Act 1872. धारा 10 का देखेंगे आप, इलेक्ट्रॉनिक साधन द्वारा की गई संविदा की विद्यमानता। इलेक्ट्रॉनिक साधन द्वारा कोई संविदा हुई जिसको हम ई कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, वो क्या है, वैलिड है, वो लॉफुल है, उसको है वो रिकॉग्नाइज किया गया है, उसको है वो वैलिडिटी है वो दी गई है, विधि मान्यता दी गई है इस धारा 10 का के अंदर। जहां किसी संविदा को बनाने में यथास्थिति, जहां किसी संविदा को बनाने में यथास्थिति प्रस्तावना की संसूचना, प्रस्तावना की स्वीकृति, प्रस्तावना का प्रतिसारण और स्वीकृतियां इलेक्ट्रॉनिक रूप में या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के साधनों के द्वारा अभिव्यक्त की जा सकेगी, वहां ऐसी संविदा केवल इस आधार पर जो है वो कि ऐसा इलेक्ट्रॉनिक रूप या साधन उस प्रयोजन के लिए उपयोग किया गया है, अप्रवर्तनीय नहीं समझी जाएगी। इसका मतलब क्या है, प्रवर्तनीय समझी जाएगी। ई कॉन्ट्रैक्ट होते हुए भी वो क्या है, वो इन्फोर्सेबल होगी, वो जो है वो प्रवर्तनीय होगी इस धारा 10 का के प्रभाव से।